Hi friends. So continuing with our study of standard 12, initially we had discussed in the beginning of chapter number 1 that we had started a new branch of physics called electricity. Just taking that a little bit, we were studying electricity here. What is electricity? It is study of electric charge and related properties. And related properties. And what is the study of electricity? Now this study of electricity is divided into two parts. Studying the stationary charge, that's called static electricity. Then studying the moving charge, moving electric charge. Now moving electric charge constitutes electric current, so therefore we call this electric current. So studying the electric current, that branch is called current electricity. So what we find is that we are studying electric charge and related properties. In that, if the charge is stationary, that branch is called static electricity. If it is moving charge, that is electric current, then we are saying that current electricity. Now, what our main purpose is to study electric current. तो उसके लिए we need to study moving charge. मूविंग चार्ज को स्टडी करने के लिए पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. तो चार्ज को रोक लिया एंड स्टडी किया, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सो बिफोर मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रिक करंट वी हैव टू स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो चैप्टर नंबर 1 and 2 was related to static electricity, जो हमने कंप्लीट कर लिया है. इन चैप्टर नंबर 1 and 2 वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. पहला तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी. उसके बाद we went over to concept of electric force between the charges, then electric field exerted by a given charge. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बातें की एंड उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बातें हुई चैप्टर 1 में. चैप्टर 2 में बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिया हमने चार्ज का. ये सारी प्रॉपर्टीज चार्ज के बारे में पढ़ी हमने. मेक कीपिंग द चार्ज स्टेशनरी. नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 3 which is studying about electric current. यानी हमारा मेन पर्पस इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, उसके लिए चार्ज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. फॉर दैट वी वेंट ऑन टू चैप्टर नंबर 1 and 2 and we studied static electricity. Study the properties. Now we are sound with the properties of stationary charge and hence now we will be able to move this charge. So now in this chapter what we are going to study is electric current, how it is generated. Sorry, पहला तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्यों अराइज होता है, what are the factors affecting the motion of the charges, वो स्टडी करेंगे. उसके बाद विल स्विच ओवर टू इलेक्ट्रिक करंट की डिटेल्स, उसके कनेक्टेड सर्टेन प्रॉपर्टीज, उसमें रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, तो वन विच अपोज द करंट, एंड देन हाउ टू मेजर द करंट एंड डिफरेंट डिवाइसेस यूज्ड इन दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टडी करेंगे. ये हमारा पूरा चैप्टर है जो हम शुरू करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इंट्रोडक्शन ऐसा लिया था कि मूविंग चार्जेस, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इन द चैप्टर वी प्लेस दैट एज मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस constitute electric current. Moving electric charges constitute electric current. And electric current क्यों तैयार क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ मूविंग चार्जेस. नाउ अभी तक तो चार्जेस स्टेशनरी थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड मूविंग. क्यों? द क्वेश्चन arises, why did the charges start moving, या who makes the charges to move. फर्स्ट सेकंड चैप्टर में एक भी चार्ज मूव नहीं हुआ, तो किसने करवाया इस चार्जेस को मूव. कौन है ऐसा सर्किट में one which makes the charges to move and hence forms the electric current. चार्जेस स्टेशन है तब तक ठीक है, बट जैसे ही चार्ज मूव करने लगे दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म. ऐसा कौन है सर्किट में which makes the charges to move. Obviously you will unanimously say that it is a battery whose presence creates the electric charge. So source of electric current in the circuit is battery. So it is the battery which is responsible for generation of electric current. या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मतलब क्या हुआ, चार्जेस मूव होने शुरू हुए. तो कौन कराता है काम, बैटरी. तो बिफोर गोइंग टू इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टडीइंग द इलेक्ट्रिक करंट वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द बैटरी हु मेक्स द चार्जेस टू मूव. तो अब अपना इनिशियल टॉपिक रहेगा बैटरी के बारे में. तो बैटरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट टर्म ले लें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी. बैटरी बोलो या फिर सेल बोलो, वन एंड द सेम थिंग. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं ईएमएफ.
या फिर इट्स अ क्वांटिटी, उसका सिंबल है ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई। अब ये ईएमएफ क्या होता है, तो उसके बारे में बैटरी को देखें, तो बैटरी यानी कि सिनोनिम है उसका सेल, सेल बोलोगे बैटरी बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। व्हाट इज बेसिकली अ सेल, तो इट्स नथिंग बट अ वेसल filled with some liquid and two rods put in it। अब ये rods बोला तो तब केमिस्ट्री पढ़े इसलिए बोलेंगे नहीं सर इसको तो इलेक्ट्रोड बोलेंगे, यस डेफिनेटली दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, दिस आर द टू इलेक्ट्रोड्स। फिर तुम बोलोगे एक को पॉजिटिव एक को सेकंड नेगेटिव, नहीं इधर ऐसा नहीं है। दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which there is a liquid, a solution, then two rods, that is electrodes। Now what happens in the battery, in the solution, there is some reaction occurring, and due to which positive and negative ions are formed. Due to which positive and negative ions are formed. Positive tend to move towards one of the rod, negative tend to move towards another rod. Positive ions move towards one rod, negative ion moves towards another rod, thus making this rod positive and this rod negative. And hence this becomes positive terminal of the cell and this becomes negative terminal of the cell. So this is how the cell has its negative and positive terminal. चलो इसी को डिटेल में देखें तो looking to the same thing from the top, looking from the top, this is the battery, इसमें ये दो रॉड हो गए and the rest part is solution. Now due to some reactions positive and negative ions are formed. Positive tend to move towards one of the rod, thus making it positive. Negative tends to move towards another rod, thus making it negative. Okay, so this becomes positive terminal, this becomes a negative terminal. ये दो रॉड, ये दो चार्जेस कैसे गए, तो इट इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स which makes this ions to move towards the two rods. It's a non-electrical force, will show them by Fn, non-electrical force। अब ये non-electrical force इनको मूव कराते हैं towards this and towards this, ये non-electrical force हो गया जो आयंस को मूव कराता है दोनों रॉड की तरफ। ये non-electrical force कैसे आया होगा, तो we can assume its origin to be in chemical reaction। During the chemical reactions ions are separated, so bonds between the ions are broken, due to that energy is released and that energy of the battery from the solution is used up in moving these charges, that is they are applying that energy is applying the force। So non-electrical force का origin कहाँ हो गया, chemical bond में से release हुई energy, because this is ionizing। okay, the positive and negative ion, non-electrical force moves the charges towards the rods। पहला आयन ब्रेक हुआ, Fn उसको ले गए यहाँ पर, दूसरा आयन ब्रेक हुआ, उसका क्या होगा, दूसरे आयन फॉर्मेशन में इसको ले जाएगा Fn ये तरफ, इसको ले जाएगा Fn ये तरफ। so what will happen now, this positive charge moving towards this rod which is already positive now, first ion deposit हो गया, बाद में ये rod positive हो गया, so that will repel the coming charge। तो रिपेल कर रहा मतलब क्या हुआ, लाइक चार्ज रिपेलिंग, वही केस हो गया। so that comes to that introduces electrical force, let's say Fe, यानी कि apart from Fn there is one more force Fe coming into existence which is applied by the rods, where the charge rods towards the ions। so after the first ion gets deposited, the next ion will feel a repulsion from there। okay, Fn तो केमिकल बॉन्ड ब्रेक हुआ उसमें से अवेलेबल हुआ है, तो Fn की वैल्यू तो फिक्स है, the value of Fn is fixed। Fe is electrical repulsive force exerted on the positive ion due to this positive rod। now इनिशियली एक ही आयन का चार्ज था, दूसरा जाके डिपॉजिट तो दूसरा भी रहेगा, दो चार्ज हो गए, तीसरे वाले के लिए दो चार्ज फेस करना है, यानी एज द टाइम पासेस द आयंस फेस मोर एंड मोर इलेक्ट्रिकल फोर्स टुवर्ड्स फ्रॉम द रॉड, यानी कि Fn is constant, that does not change, but Fe increases gradually as the charges get deposited on the rod, as the ions get deposited on the rod, this becomes more and more positive, and this one more and more negative, hence offers more and more repulsive force, and therefore Fe increases gradually। Fn का वैल्यू इनिशियली क्या होता है, इनिशियली Fn dominates, therefore the charges move towards the rod, but gradually Fe increases, therefore at some time, at some instant we find that Fe increase हो रहा है, Fn तो फिक्स है, initially Fn was more than Fe बढ़ रहा है, तो at some instant Fe will become equal to Fn,
एट सम इंस्टेंट हैपन दैट इधर इतना पॉजिटिव हो गया कि रिपल्जन जो देगा वो और Fn दोनों सेम हो जाएगा। तो बाद में जो आयन आएगा, दिस आयन कमिंग टुवर्ड्स हियर ड्यू टू Fn and repulsive force due to Fe, both will be balancing each other, and so the resultant force will be 0, so no further motion of ion. At some instant when Fe becomes equal to Fn, at that time resultant force becomes 0 and therefore no further motion of ions. यानी इसके बाद आयंस का मूवमेंट बंद हो जाएगा, यानी नो फर्दर डिपॉजिटिंग ऑन पॉजिटिव टर्मिनल, नो फर्दर डिपॉजिटिंग ऑन द नेगेटिव टर्मिनल, ये देखने को मिलेगा। अब जब ये रुक गया तब क्या होगा, therefore now a fixed positive and negative charge on rods, उसके बाद अब फर्दर चार्जिंग नहीं बढ़ेगा, मतलब therefore a potential difference is created across two rods. पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आया, तो सी पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव मींस हायर एंड नेगेटिव मींस लोअर। पॉजिटिव यानी प्लस आया, नेगेटिव मतलब घुमाया, दैट्स व्हाट इज द कांसेप्ट। सो पॉजिटिव मींस हायर पोटेंशियल, नेगेटिव भी लोअर पोटेंशियल। सो इस बैटरी में जो दो रॉड थे अब कैसे होंगे, रॉड को कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन। लंबी लाइन मींस हायर पोटेंशियल, छोटी लाइन है लोअर पोटेंशियल, इंडिकेटिंग पॉजिटिव दैट्स हायर पोटेंशियल, नेगेटिव दैट्स लोअर पोटेंशियल। इसीलिए बैटरी का सिंबल ऐसा रखा जाता है। लॉन्गर लाइन मींस हायर पोटेंशियल, शॉर्टर लाइन है लोअर पोटेंशियल। सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड, दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। किस कंडीशन में, व्हेन नो फर्दर मोशन ऑफ द आयंस, व्हेन नो फर्दर मोशन ऑफ द आयंस, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ बैटरी, इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो ईएमएफ ऑफ बैटरी का एक कांसेप्ट हो गया कि इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स और टू रॉड्स ऑफ बैटरी व्हेन देयर इज नो मोशन ऑफ चार्जेस, नो मोशन ऑफ द आयंस इन द बैटरी। अंदर कोई मोशन नहीं है चार्जेस का यानी आयंस का, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा, जो स्टेडीनेस आ गया, उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो व्हाट वी फाइंड इज दैट, व्हाट इज ईएमएफ बेसिकली, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स। ये जो सिचुएशन में नो मोशन ऑफ द चार्जेस टेक्स प्लेस, इस सिचुएशन को बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन, दैट्स कॉल्ड ओपन सर्किट कंडीशन। सो ओपन सर्किट कंडीशन मतलब क्या, इट इज सच अ कंडीशन ड्यूरिंग व्हिच no motion of charges in the battery, such a condition of the battery in which no motion of the charges takes place, that's called open circuit condition. And during the open circuit condition जो potential difference यहाँ create होता है that's called EMF of the battery, that's called EMF of the battery. okay, तो ये कौन से एक एंगल हो गया EMF का, ये एक एंगल हो गया EMF का, potential difference between the two। अब हमने क्या देखा कि in the chemical solution of the battery ionization takes place, पॉजिटिव आयन मूव्स ऑन वन रॉड, नेगेटिव आयन मूव्स ऑन अदर रॉड, बराबर, हमने ऐसा देखा। और वैसे देखा जाए तो क्या बोलते हैं, अगर इसको दूसरे एंगल से देखे तो, इसको दूसरे एंगल से देखे तो, अब ये जो केस था कैसा था कि इन द केमिकल सॉल्यूशन आयनाइजेशन अकर्स, पॉजिटिव आयन मूव्स टू वन रॉड, नेगेटिव आयन मूव्स टू अनदर रॉड। इसी को दूसरे एंगल से देखे तो कुछ ऐसी बात भी हो सकती है, देयर इज अनदर व्यू आल्सो, ये एक रॉड, ये दूसरा रॉड, केमिकल सब्सटेंस ना। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज निकलता है, आवर टेस्ट चार्ज द +1 कूलम चार्ज कम्स आउट फ्रॉम वन ऑफ द रॉड एंड मूव्स टुवर्ड्स अनदर रॉड, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज को, +1 कूलम चार्ज को एक रॉड से निकल के दूसरे रॉड पे भेजा जाता है। द रॉड विच इज लूजिंग दिस पॉजिटिव चार्ज विल बिकम नेगेटिव एंड द रॉड विच गेन्स विल बिकम पॉजिटिव। द रॉड विच लूजेस द चार्ज बिकम नेगेटिव, द रॉड विच गेन्स द चार्ज बिकम्स पॉजिटिव। यानी इसने लूज किया, इसने गेन किया, तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, दैट्स हाउ द केस कम्स। ना ये होगा कैसे, विल द चार्ज इमर्ज फ्रॉम हियर एंड जॉइन हियर बाय इटसेल्फ, नहीं, सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू टेक आउट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव दिस रॉड एंड पुट इट ऑन द अदर रॉड, सम वर्क हैज टू बी डन। ये वर्क कौन करता है, इट इज अ बैटरी व्हिच डज दिस वर्क, यानी बैटरी अपने पास जो एनर्जी है उसको यूज करके moves a unit positive charge from this rod to this rod, okay, and a potential difference created. क्यों, क्योंकि charge moving from here, when the battery is doing work on the charge gains energy, and that when यानी कि charge जब यहाँ पे आए इस rod पे तब उसके पास एनर्जी है,
बैटरी ने वर्क किया, वो एनर्जी मिली चार्ज को, तो बैटरी यहाँ पे चार्ज में एनर्जी है, दैट मीन्स चार्ज इज अ पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ जीरो, यहाँ रिड्यूस हुआ, तो मतलब क्या हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, एंड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड एंड वी कॉल इट एज अ बैटरी ऑफ द बैटरी। सो दैट्स हाउ द पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये सेकंड एंगल हो गया। तो इसमें क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय बैटरी, और वी कैन से एनर्जी गेन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किस कंडीशन में, वाई मूविंग फ्रॉम, कौन से रॉड से कौन से रॉड जा रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, कहां से, थ्रू बैटरी, कब, इन ओपन सर्किट कंडीशन एंड नो करंट पासिंग टू बैटरी, उस केस को बोलते हैं, उसको बोलेंगे दिस पोटेंशियल, दिस एनर्जी गेन और वर्क डन, दिस एनर्जी गेन और वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ बैटरी। यानी कोई मूवमेंट नहीं है, बाहर से कोई चार्ज है ना, यहाँ मूवमेंट नहीं कर रहा है, बस खाली बैटरी इधर से उधर भेज रहा है, एंड दैट वर्क डन बाय द बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी और एनर्जी गेन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हाइल मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू द बैटरी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। ये दूसरा एंगल हो गया इसका। तो ईएमएफ कैन बी डिफाइंड इन टू डिफरेंट मैनर्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स व्हेन ओपन सर्किट कंडीशन, या फिर वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी गेन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज while moving from negative to positive through the battery। ये एक बात हो गई ईएमएफ पे। तो ये टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया ईएमएफ ऑफ बैटरी, दैट इज ई। अब दूसरी बात करते हैं, तो यहां से चार्ज मूव्स टू हियर, कैसे, थ्रू द सॉल्यूशन। विल द सॉल्यूशन अलाउ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज इजीली, कि भाई नहीं नहीं जाओ तुम तेरे, अपना ही घर है, घूमो तुम तेरे, नहीं। व्हेन द चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, during that the material inside the battery opposes the motion of the charge, it opposes the motion of the charge while moving from here to here, battery work कर रहा है, पर सामने ये जो मटेरियल है बीच में, that opposes the motion, okay, and that opposition offered by the solution of the battery to the moving charge while moving from negative to positive terminal, that opposition offered is called internal resistance of battery, internal resistance ऑफ बैटरी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी क्या हो गया, तो दूसरा हमने डिफाइन किया यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या चीज है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द बैटरी, बैटरी के अंदर की बात है, इंटरनल ऑपोजिशन यानी रेजिस्टेंस, तो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द बैटरी टू द मूविंग चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो बैटरी का दूसरा क्वांटिटी आ गया, तो ये है दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके। एंड तीसरी बात, बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, दैट्स आल्सो कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज, कैपिटल वी इज द सिंबल ऑफ बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज यानी क्या है, तो वोल्टेज इज अनदर वर्ड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, यूज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोलो तो भी चलता है, दोनों एक ही बात है। तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो बैटरी के लिए हमने तीन क्वांटिटी डिफाइन की, तो ईएमएफ, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा टर्मिनल वोल्टेज, ओके। तुम बोलोगे यार सर ये भी पोटेंशियल डिफरेंस था, ईएमएफ ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों में फर्क क्या है। ईएमएफ में नो करंट इज पासिंग ओपन सर्किट कंडीशन में, एंड टर्मिनल वोल्टेज एनी टाइम, करंट पास हो रहा क्या नहीं हो रहा, डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो एक बात तो हो गई कि अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज विल बी ईएमएफ, यस डेफिनेटली। When no current is passing यानी कि ओपन सर्किट कंडीशन हो, तब टर्मिनल वोल्टेज इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। हम अगले इसके आगे हम लोग लेंगे रिलेशन बिटवीन दीज थ्री, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? इफ एनी डाउट जस्ट गिव मी अ मैसेज। चलो नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर obtaining the relation between E, V and R. E is the EMF of the battery, V is the terminal voltage and R is the internal resistance. Now this is the battery. Longer line shows higher potential, shorter line shows lower potential, and potential difference across the two. Now, what we defined EMF as, it is the total energy gain by unit positive charge while moving from negative to positive terminal. यानी यहाँ पे +1 कूलम चार्ज moves from negative to positive terminal
through the battery. This total energy gained is called EMF E. So when it comes from here to here, it is same as work done. Total energy gain लिखो या work done by the battery लिखो. Total energy gained by unit pulse charge या फिर work done by the battery, दोनों एक ही बात है. So that total energy gained by unit pulse charge while moving from negative to positive terminal through the battery is called EMF of the battery. ये हमने definition लिया. ना EMF का यूनिट ले लेते हैं साथ साथ में. क्या आएगा यूनिट? एनर्जी जूल पर यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम, जिसको तो हमने वोल्ट बोला हुआ है स्टार्टिंग में. तो EMF का यूनिट वोल्ट है. EMF is electromotive force. खास याद रखें, it is electromotive force. तो वैसे तो फोर्स लिखा है तो इसका न्यूटन होना चाहिए, नहीं, इट हैज अ यूनिट वोल्ट. इट इज बेसिकली अ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, एनर्जी गेन पर चार्ज इज इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस. देयरफॉर इवन दो फोर्स लिखा है फिर भी उसका यूनिट वोल्ट है, ये खास ध्यान रखना. ओके, चलो फिर व्हाइल पासिंग फ्रॉम हियर टू हियर द इंटरनल रेजिस्टेंस, द बैटरी का जो मटेरियल है वो अपोज करता है मोशन को, एंड सम वर्क विल बी डन अगेंस्ट दैट इंटरनल रेजिस्टेंस. इफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बैटरी इज I, if I is the electric current through battery, is I, then IR is the amount. तो कितनी एनर्जी, अगर करंट I है मतलब चार्जेस पास हो रहे हैं, वो चार्जेस को अपोज हो रहा है, तो IR विल बी द एनर्जी स्पेंट और लॉस्ट बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट internal resistance, while passing through battery from positive to negative terminal, while moving from negative to positive to the battery. ये पूरा क्लॉज एज इट इज. मतलब क्या हुआ, टोटल यहाँ से आने में टोटल एनर्जी कितनी गेन की E, उसमें स्पेंड कितनी हो गई या लॉस कितनी हो गई IR. तो बची कितनी यहाँ से आने में, तो उसको लेंगे E माइनस IR. Therefore E minus IR is net energy gain. Net energy gain by +1 coulomb charge while moving from negative to positive through the battery. यानी कि while moving from here to here total energy E मिली, उसमें से internal resistance IR जितनी खा गया, तो बची कितनी, नेट कितनी मिली, +1 coulomb charge को यहाँ से यहाँ पास होने में नेट एनर्जी कितनी मिली, E minus IR. Now net energy यानी क्या, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स. नेट एनर्जी मींस एनर्जी डिफरेंस एंड यूनिट कॉलम, यूनिट चार्ज की बात है, पर यूनिट चार्ज, तो इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस. सो इसको दूसरे में बोलेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी. क्लियर. यहां से आने में टोटल एनर्जी ई मिलती है, उसमें से IR खर्च हो गई, तो नेट एनर्जी कितनी मिली, क्लियर एनर्जी उसको कितनी मिली, E माइनस IR. यानी यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे एनर्जी एंड पॉजिटिव टर्मिनल एनर्जी, दोनों के बीच का नेट डिफरेंस कितना है, E माइनस IR. अब एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज तो पोटेंशियल बोलते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन अ वे, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स इज नथिंग बट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी. ये तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी का डेफिनेशन हो गया. तो देयरफॉर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज इक्वल टू E माइनस IR. ये रिलेशन आया EV एंड R के बीच में. Terminal voltage is E minus IR. Terminal voltage is effective potential difference across two terminals. Terminal voltage is effective potential difference across two terminals. EMF is the total energy gain and IR is the energy lost. अब इस इक्वेशन को ध्यान से अगर समझे तो ये इक्वेशन क्या बताता है कि बैटरी का EMF E है, बैटरी का EMF E है, एंड इसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस इफेक्टिव एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, V. यानी कि हमेशा एक्चुअल EMF में से कुछ पार्ट कट होता है and what we get is a terminal voltage, potential difference across the terminals. यानी बैटरी का एक्चुअल EMF E है, तो हमें E नहीं मिलेगा पूरा, उसमें से IR जितना डिडक्ट हो जाएगा. क्यों, there is energy lost or spent inside the battery against the internal resistance. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली बात करें तो आप बाजार में बैटरी लेने गए, 1.5 वोल्ट का सेल लिया आपने. अब वो सेल तो लेके ऊपर लिखा है क्लियरली 1.5 वोल्ट EMF. आप जाके उसको सर्किट में लगाएंगे एंड उसका अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो इट कम आउट बी 1.35 समथिंग. तो आप बोलोगे 1.5 लिखा है एंड मिलता तो 1.35 है, उल्लू बना रही है, तो वापरे ली बैटरी दी, इट्स अ यूज्ड बैटरी. नो, इट्स नॉट. हम लोग साइंस स्ट्रीम पढ़ते हैं, हमको पता है
कि 1.5 वोल्ट अगर उसका ईएमएफ लिखा है तो पूरा का पूरा नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज सम पार्ट इज डिडक्टेड व्हाइल पासिंग, सम पार्ट इज डिडक्टेड अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस. टोटल ईएमएफ ई है, उसमें से कुछ पार्ट डिडक्ट होगा, हमको इफेक्टिव कितना मिलेगा? V, that is 1.35. So always effective voltage is always less than the actual EMF of the battery. V is always less than actual EMF of the battery. हाँ, किस कंडीशन में V इक्वल टू E हो गया? किस कंडीशन में होगा? जब IR 0 हो गया. R तो 0 हो नहीं सकता, तो when I is 0, यानी नो करंट पासिंग टू द बैटरी. नो करंट पासिंग टू द बैटरी, नो मोशन ऑफ चार्ज. तो इसको तो हमने डिफाइन किया था ओपन सर्किट कंडीशन. इसको हमने डिफाइन किया था ओपन सर्किट कंडीशन. तो जब ओपन सर्किट कंडीशन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ईएमएफ. यानी आपको अगर बैटरी का ईएमएफ एक्चुअल चाहिए तो नो करंट शुड बी पास टू द बैटरी उस कंडीशन में. इससे जब आप बैटरी खरीदते हैं तो क्या होगा? इट बी 1.5 वोल्ट का करंट नहीं पास हो रहा है ना, वो तो लगा हुआ है बैटरी, खाली बैटरी है. पर जब उसको तुम सर्किट में लगाओगे, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड सो सम पार्ट विल बी डिडक्टेड एंड सो यू विल गेट ईएम पोटेंशियल डिफरेंस लिटिल बिट लेस देन द एक्चुअल ईएमएफ. यानी एक्चुअल ईएमएफ उससे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम ही मिलता है. ये तो सीधी सी बात है, हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस भी है. माँ ने बोला बेटा जाके बाहर से राशन ले आओ, लिस्ट भी दे दिया एंड पैसे दे दिए. मान लो हम लोग एज्यूम करेंगे माँ ने जो लिस्ट दिया उसका टोटल अराउंड 490 रुपीज का हुआ, आपने उधर 490 रुपीज दे दिए, पे कर दिए राशन वाले को. अब 500 की नोट थी, 490 पे कर दिया, 10 रुपीज बचा, तो क्या 10 रुपीज घर जाते हैं? नहीं, वो तो दाबेली खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं. कमीशन तो हमेशा करते हैं हर जगह. तो बैटरी में भी कमीशन करता है. इंटरनल रेजिस्टेंस टेक्स अवे लिटिल बिट एंड जो रिमेनिंग मिलता है वो उनको इफेक्टिव ईएमएफ मिलता है. ओके, सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ द बैटरी. तुम बोलोगे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट का है, बातें इलेक्ट्रिक करंट की करनी है, तो व्हाई बैटरी? अभी तो आधे घंटे तक बैटरी भी नहीं आया. द थिंग इज इलेक्ट्रिक करंट के अराइज होने के पीछे हाथ किसका? बैटरी का. तो पहले इस रीजन को पकड़ो, फिर करंट को पकड़ते हैं. यानी अभी हमने करंट की बैकग्राउंड देख ली है. अगले लेक्चर में विल सी हाउ इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और अराइजेस.